students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So, let's start our today's lecture. Firstly, I read the question. The question is exercise 1.2 10th sum. Let capital A is equal to r minus 3 and capital B is equal to r minus 1. Consider the function f from a to b defined by fx is equal to x minus 2 divided by x minus 3. Is f is 1 1 and on to question mark. Justify your answer. That means we have given a function, okay students, and in a function our domain is capital r minus 3 and our codomain is r minus 1. That means in our domain there are one element left and also in our codomain there are one element also left. Okay, so in our domain there is 3 is not present and also in our codomain 1 is not present. So let's start. Okay, so answer. Firstly, I mentioned the given function here f from a to b, where fx is equals to x minus 2 by x minus 3 be a given function where a is equals to r minus 3 and b is equals to r minus 1. चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है हमारा फंक्शन. अभी हम 1 1 की बात करेंगे. चलो देख लेते हैं. हमें तो क्वेश्चन मार्क ही किया है कि 1 1 है कि नहीं वो चेक करना है. सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ क्योंकि मुझे 3 नहीं लेना है, क्योंकि r में से 3 को माइनस कर दिया है. मतलब 3 के अलावा जो भी मेंबर्स है वो सब मैं ले सकता हूँ. सबसे पहले मैं 1 लूँगा तो 1 minus 2 1 minus 3 दैट मीन्स हाफ मिलेगा आंसर. उसके बाद मैं 2 लूँगा तो 2 minus 2 दैट मीन्स 0. 3 नहीं ले सकता. 4 लूँगा तो 4 minus 3 दैट मीन्स 2 मिलेगा. अभी 3 नेगेटिव नंबर ले लेते हैं. -1 पुट करूँगा तो -1 minus 2 दैट मीन -3 एंड -1 minus 3 -4 दैट मीन्स 3/4 मुझे मिलेगा. -2 पुट करूँगा तो -2 -4 एंड डिनोमिनेटर में -5 मिलेगा. दैट मीन्स 4/5 मिलेगा. इसका मतलब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बार जो आंसर आ गया ना वो रिपीट नहीं हो रहा है. अगली बार वैल्यू चेंज हो रहा है. जैसे जैसे आंसर आ रहा है बराबर, हमारा को डोमेन का जो भी आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है. मतलब आंसर एक बार सपोज हाफ आ गया तो दूसरी बार हाफ नहीं आ रहा है. जो 2 आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम 2 नहीं आ रहा है. 4/3 आ गया, 4/5 आ गया, 3/4 आ गया. ऐसे कई मेंबर्स 1/1 आ रहे हैं, कोई डिफरेंट आ रहे हैं. आप जैसे जैसे वैल्यूज डोमेन में से पुट कर रहे हैं वैसे आपको डिफरेंट वैल्यू आपको को डोमेन में मिल रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो इसका मतलब 1 1 तो आएगा. तो हम जैसा प्रूफ कर रहे हैं ऐसा कर देंगे. फॉर 1 1 ओके, फॉर ऑल x1, x2 belongs to capital A, our domain f of x1 is equals to f of x2. That implies x minus 2 divided by x minus 3 is equals to x2 minus 2 upon x2 minus 3. We do a cross multiplication in this simplification, so we get x1 minus 2 and x2 minus 3 is equals to x1 minus 3 and x2 minus 2. Now our two bracket, open our two bracket and multiply every term to each other. We get x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 minus 6 plus 6 is equals to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 and plus 6. So students, on both the sides some terms are cancelled, so cancel out. First one is cancel and the last one is cancel. So the remaining term that we may write as, so here minus 3x1 and here minus 2x1. That means the minus 3x1 go that side. Okay, we take this term on RHS. Okay, so we get 3x1 minus 2x1, that means x1, and similarly we get is equal to x2. Therefore f of x1 is equals to f of x2. That implies x1 is equals to x2. Therefore f is 1 1 function. Similarly for on 2.
सिमिलरली फॉर ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले ऑन टू की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आपको जो हमारा कोडोमेन है उसका कोई भी मेंबर आपको चाहिए सपोज, तो आप क्या करेंगे, वो मेंबर आप यहाँ fx की जगह पे पुट कर देंगे और ऐसे रिलेटेड टू दैट एलिमेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ विच वन you want which element, okay, that element just put here replace by fx। मतलब कि fx के जगह पे आपको वो वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करके जो भी x का आंसर आएगा वो x आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगा। इसका मतलब ये ऑन टू भी आएगा। ओके, समझ में आ गया, ऑन टू भी आएगा। ओके चलो, तो ऑन टू आएगा, इसका मतलब हमें जो ऑन टू की प्रोसेस है ऐसे हम प्रूफ कर देते हैं। लेट for y belongs to R codomain, take fx is equals to y, that implies x minus 2 by x minus 3 is equals to y. So this function convert into our the value of x, this is y is equal to, now इसका मतलब ये y is equal to, इसको हम x equals to में प्रूफ कर देते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 3y, इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y। इसमें से x कॉमन आउट निकलेगा तो x 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। चलो, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x for all y belongs to our codomain, for all y belongs to our codomain, there exists any x belongs to domain such that fx is equal to y। that means x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, नाउ fx is equals to f of 2 minus 3y upon 1 minus y is equals to 2 minus 3y upon 1 minus y minus 2 divided by 2 minus 3y divided by 1 minus y minus 3। देख लीजिए, कंपेयर करें, ये दोनों फंक्शन को मैंने कंपेयर किया था, x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप ये देख लीजिए, बराबर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ वी टेक एन LCM ऑफ दिस टर्म, वी गेट 2 minus 3y minus 2 into bracket 1 minus y divided by 1 minus y whole divided by 2 minus 3y minus 3 into bracket 1 minus y whole divided by 1 minus y। सो स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम ले लिया तो हमें ये आंसर मिला इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू। अभी देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और वहाँ -2 को अंदर और यहाँ -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट 2 minus 3y minus 2 plus 2y डिवाइड बाय 2 minus 3y minus 3 plus 3y। ओके, न्यूमरेटर में कौन सा टर्म कैंसिल हो गया, +2 minus 2, डिनोमिनेटर में +3y minus 3y, सो वी गेट -3y plus 2y इज इक्वल्स टू -y, डिनोमिनेटर में -1, इसका मतलब दोनों माइनस कैंसिल, सो वी गेट fx is equals to y। इसका मतलब क्या है, thus और hence for all y belongs to capital R codomain, there exists any x belongs to R domain such that fx is equals to y, therefore f is onto function। सो आप देख सकते हैं हमारा onto भी प्रूफ हो गया। हमने कैसे वेरीफाई किया कि आपको जो भी onto के लिए हमारा जो कोडोमेन है वो कोडोमेन वो सेट हमारा पूरा का पूरा आना चाहिए। इसका मतलब हमारा कोडोमेन का एक भी मेंबर बाकी रहना नहीं चाहिए एक्सेप्ट -1।
क्योंकि -1 को उसमें से सब्सट्रैक्ट किया है इसलिए। इसके अलावा कोई भी मेंबर हमारा बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेंबर बाकी हो रहा है तो वो जो मेंबर आपके दिमाग में आ रहा है ना वो आप कहाँ रख देंगे, तो आप आपके fx के जगह पे रख देना, इज इक्वल्स टू जो है वो। ओके, तो fx के जगह पे वो वैल्यू रख देंगे और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की आपको वैल्यू मिलेगी, बराबर। तो वो x की वैल्यू आपके डोमेन की वैल्यू होगी जो आप के fx में पुट करेंगे, और आपका जो वैल्यू जो मैंने अभी बोला कि ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आपका ये फंक्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क किया था इसलिए, तो दोनों ही आ गए। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। चलो मूव टू अवर नेक्स्ट सम। सम इज एक्सरसाइज 1.2 11 सम। स्टूडेंट्स दिस इज अवर MCQ। हमारे जो बुक है उसमें, हमारा जो टेक्स्ट बुक है हमारा NCERT बुक, तो उसमें ये MCQ है और पर MCQ को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, पर आपको तो जो बुक में क्वेश्चन दिया है वही यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी सी, लेट f from R to R defined as fx is equal to x raised to 4 is f is 1 1 and on to क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। सो आंसर में सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, हियर f from R to R where fx is equal to x raised to 4 be a given function. Okay, so first I write for 1 1। okay students, चलो सबसे पहले मैं 1 1 की बात कर लेता हूँ। तो इस R में से मैं 1 by 1 वैल्यू इसमें पुट करूंगा और मुझे आंसर डिफरेंट मिलना चाहिए, नॉट अ यूनिक आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो 1 पुट करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, 2 पुट करूंगा तो मुझे 16 मिलेगा, 0 पुट करूंगा तो 0 मिलेगा, -1 पुट करूंगा तो 1 मिलेगा। ओके, सो देखिए आपको समझ में आ गया होगा मैं चुप क्यों हो गया हूँ, मैं साइलेंट क्यों हो गया हूँ, क्योंकि समझदार को तो इशारा काफ़ी ही है। क्योंकि आपने 1 और -1 दो पुट करेंगे ना, 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और -1 पुट करेंगे तो अभी आपको 1 ही मिलेगा। ऐसे ये एक ही पेयर नहीं, ऐसे कई पेयर्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के, जो आप पुट करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा। 2 - 2 3 - 3 4 - 4 ऐसे कई मेंबर्स होंगे जो आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो ऑन टू की बात कर ही लेते हैं। चलो ऑन टू के लिए हमें ये पूरा का पूरा R चाहिए, मतलब वी हैव a whole R of our codomain, but that is not possible here because of our function is x raised to 4. That's why we may write the given function is not onto. How? Because if you put x is equal to 1, then you get 1. Then if you put x is equal to 2, then you get 16. That means the remaining numbers between 1 and 16, okay, all are not come, all are remain. स्टूडेंट्स ये जो सभी मेंबर्स है जो 2 से लेके 15 तक सभी मेंबर्स बाकी रहेंगे, एक भी मेंबर नहीं आएगा। सिमिलरली नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, -2 से लेके -15 तक के सभी नंबर्स नहीं आएंगे। इसका मतलब एक नंबर नहीं आता तो हम ऐसे बोल देते कि ऑन टू नहीं आएगा, पर यहाँ तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स विच नॉट कम इन आवर कोडोमेन। स्टूडेंट्स, सो ये आपका ऑन टू भी नहीं आएगा। सो हम इसका सॉल्यूशन है वो हम लिख देते हैं, तो आप देख लीजिए। फॉर 1 1 हियर फॉर x1 is equals to 1, f of 1 is equals to 1 is to 4 is equal to 14, okay 1, and for x2 is equals to -1, f of -1 is equal to -1 is to 4, that means 1. Okay students, not -14. okay, so we get f of 1 is equals to f of -1, but x1 is not equals to x2, therefore f is not 1 1 function. okay students, चलो सिमिलरली अभी हमने ऑन टू की बात कर ही दी है, सिर्फ हमारा यहाँ पे लिखना ही बाकी है फॉर ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, चलो सो हियर for 2 belongs to R, our codomain, there does not exist
any x belongs to R domain which is such that fx is equals to 2। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं हमारे डोमेन में जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमें आउटपुट में क्या 2 मिल सके। ओके, देयरफॉर we write our final answer f is not onto function। इसका मतलब हमारा f जो है वो 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है, मतलब दोनों के दोनों केस यहाँ पे फेल हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा होगा। अभी तो आपको अभी तो आप 1 1 और onto में तो कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। Now next one is exercise 1.2 12th sum, which is also a MCQ. Okay students, just I convert into our question, the MCQ which is convert into question. So because of the practice is going good for you, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए 1 1 और onto के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 1 1 और onto इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज आगे भी आएगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए ये टॉपिक आपको खास परफेक्ट और प्रॉपर आ जाना चाहिए। चलो ओवर नेक्स्ट सम। सबसे पहले मैं इसको मेंशन कर देता हूँ हियर f from R to R where fx is equals to 3x be a given function. So I mentioned the given function. Now let's check for the one-oneness and onto-ness. Let's see. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस R में से 1 by 1 वैल्यूज हमारे फंक्शन में पुट करूंगा और चेक करूंगा कि जो हमारे आउटपुट आ रहे हैं वो यूनिक है या सेम आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 2 पुट करूंगा तो 6 मिलेगा, 3 पुट करूंगा तो 9 मिलेगा। इसका मतलब we get a multiplied of 3, we get the all elements which are multiplied by 3। ओके स्टूडेंट्स, सो और माइनस के भी देख लेते हैं। 0 पुट करूंगा तो 0, -1 पुट करूंगा तो -3, -2 पुट करूंगा तो -6, -3 पुट करूंगा तो -9। सो देयर आर नो 2 elements which have same answer। Okay students, so we may write the given function is a 1 1 function, क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 मेंबर है ही नहीं कि जिसका आउटपुट सेम आ रहा हो। बराबर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो भी आप डोमेन में से मेंबर ले रहे हैं उसका आंसर आपको यूनिक ही मिल रहा है। बराबर, यूनिक इमेज ही आपको कोडोमेन में मिल रहा है। सो हम फाइनल कंक्लूजन कर सकते हैं द गिवन फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसको हम मेंशन लिख देते हैं। सबसे पहले फॉर 1 1 for all x1 comma x2 belongs to capital R domain f of x1 is equals to f of x2, that implies 3x1 is equals to 3x2, that implies x1 is equals to x2, because the 3 is cancel on both the side, we get x1 is equal to x. So therefore f of x1 is equals to f of x2, that implies x1 is equals to x2, therefore f is 1 1, f is 1 1 फंक्शन। सो आपका एक फंक्शन तो सेटिस्फाई हो गया है। अभी हम मूव टू आवर नेक्स्ट फंक्शन। फर्स्टली आई मेंशन इट हियर फॉर onto। चलो onto आएगा या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। आपको जो भी वैल्यू चाहिए कोडोमेन का वो वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो रिलेटेड टू दैट एलिमेंट यू गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज आई वांट अ वैल्यू ऑफ half, suppose I want the value of half in our codomain, that means I put half in replaced by fx, so I get half is equals to 3x, that means x is equal to 1/6। suppose स्टूडेंट्स मैं x is equal to 1/6 हमारा fx में पुट करूंगा ना तो मैंने जो अभी आपको वैल्यू बोला कि मुझे हाफ चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली आपको जो भी वैल्यू आपको चाहिए ना तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको रिलेटेड टू दैट एलिमेंट यू गेट द वैल्यू ऑफ
x, ओके स्टूडेंट्स, इन आवर डोमेन। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो आपका ऑन टू बी सेटिस्फाई करेगा, बराबर। चलो तो उसके भी बात हम कर लेते हैं। हियर और लेट फॉर y बिलोंग्स टू R कोडोमेन टेक fx is equals to y, that implies fx की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x is equals to y, that implies x is equal to y by 3। चलो तो for all y belongs to our codomain there exists any x, okay, हमने x we get any x belongs to domain such that fx is equal to y। इसका मतलब for all y हमने स्टार्टिंग में लिया, according to that y we get the value of x। now we put the value of x in our fx। now let's see, fx is equal to f of y by 3 is equals to 3 into y by 3, so the 3 is cancelled, that means we get fx is equals to y। That means our onto functions definition satisfy here, therefore hence for all y belongs to capital R codomain there exists any x belongs to R domain such that fx is equals to y। इसका मतलब जो हमारी ऑनटू की डेफिनेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो हम पहले आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर f is onto फंक्शन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये आप हमारा जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसका हमारा एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, तो आपको 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है कि जो ऑप्शन में 1 और ऑन 2 दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एमसीक्यू 1.2 12th सम। ओके, चलो स्टूडेंट्स, so I stop here today now, and now we have only 4-5 sums remaining 4 or 5 sums related to one and onto topic in we will see in our next lecture students। but हाँ स्टूडेंट्स, हमने एमसीक्यू जब हमारा रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ था तब मैंने ऐसा बोला था कि हमारा एमसीक्यू जितने भी हम चैप्टर के एंडिंग में करेंगे, पर यहाँ हमने कर दिया। मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो रिलेशन पे डिपेंडेंट जो एमसीक्यू है ना, जो हमने स्किप किए थे, वो सबसे पहले हम कर देंगे, वो कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारा एमसीक्यू वाला टॉपिक है वो पैरेलल कंप्लीट होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, स्मार्ट हार्ड वर्क दोनों साथ में कीजिए, और राइटिंग मस्ट राइट ऑल द मटेरियल properly because this is a 12th science and which is a high secondary board students, so take it seriously students, take it seriously। I hope you all are understand and stay home, stay safe, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, वीडियोस देखते रहिए, समझिए, लिखते रहिए, प्रॉपर मटेरियल बनाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके स्टूडेंट्स।